Hello everyone. Now welcome again in video lecture class. Today I am going to talk about the topic National Policy for Person with Disabilities 2006, which is related to the B.Ed semester 4 paper number 12 unit 1. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ B.Ed सेमेस्टर 4 के अंतर्गत पेपर नंबर 12 में यूनिट 1 जो कि क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, उसके अंतर्गत टॉपिक नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिजेबिलिटी एक्ट 2006 की राष्ट्रीय विकलांग एवं पुनर्वास नीति, जो कि भारत सरकार की एक ऐसी योजना जिसमें कि विकलांग या असमर्थित व्यक्तियों के लिए उन्हें विकलांगता से बचाव और साथ ही साथ पुनर्वास नीति बनाई गई थी। अब उस नीति के अंतर्गत मैंने इसके पूर्व के वीडियो में 1995, उसके बाद 1999 और 1992 की कुछ रिहेबिलिटेशन और पुनर्वास और रोजगार संबंधी चीज़ों की चर्चा की थी। मैं आज आपसे मुख्य रूप से 2006 की जो रणनीतियाँ बनाई गई थी, 10 मुख्य रूप से आधार थे, उससे संबंधित बात करूँगा। उसमें मैं शुरू के जो 2 पॉइंट हैं उसकी कुछ बात को आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर 1 अगर उसमें बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ डिजेबिलिटी, यानी विकलांगता से कैसे बचाव हो, कैसे विकलांगता का रोकथाम हो, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। दैट मीन्स द फैक्ट इज दैट डिजेबिलिटी फॉर एनी ह्यूमन बीइंग इट इज द कर्स ऑफ द सोसाइटी। किसी व्यक्ति के लिए विकलांगता एक अभिशाप के रूप में है, उसे दिव्यांग व्यक्ति भी हम लोग मानते हैं, लेकिन जब वो समाज के मेन स्ट्रीम में, मूल धारा में रहकर अगर अपना जीवन यापन करे और आत्मनिर्भर बनकर जीवन यापन करे तब तो सही है, लेकिन अगर उसे कोई साथ न दे और वो असमर्थ होकर इधर उधर भिक्षाटन करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। सो इट इज नोन एज द कर्स ऑफ आवर सोसाइटी। बट उसके पहले बात इस पर जोर देना है, दैट मीन्स वी हैव एम्फसाइज, हम लोगों को इस पर जोर देना है कि व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ डिजेबिलिटी, क्यों ना इसे रोका जाए, रोकथाम किया जाए, ये डिजेबिलिटी विकलांगता हो ही ना, इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। दूसरी जो बात है रिहेबिलिटेशन मेजर्स, यानी पुनर्वास के क्या तरीके हों, कैसे उसे पुनर्वासित किया जाए जिससे कि इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आए ही ना, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो कि मदद करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में भी मैं अब आपसे ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट पर विस्तार से बात करने जा रहा हूँ। Now, first describe in English National Policy for Person with Disability Act 2006. Number 1, National Policy for Person with Disability and its fundamental aspects. Now, it consists of 10 points. Number 1, first point, prevention of disabilities. Since disability in a large number of cases is preventable, there will be a strong emphasis on prevention of disabilities. Program for prevention of disease which result in disability and the creation of awareness regarding measures to be taken for prevention of disabilities during the period of pregnancy and thereafter will be intensified and their coverage expanded. Now, second point, rehabilitation measures. Rehabilitation measures can be classified into 3 distinct groups. Number 1, physical rehabilitation, which includes early detection and intervention, counseling and medical intervention, and provision of aids appliances. It will be also include the development of rehabilitation professions. Number 2, educational rehabilitation including vocational education. Number 3, economic rehabilitation for a dignified life in society. Now, in number 2, that is rehabilitation measures, first point, physical rehabilitation. Physical rehabilitation strategy. A, early detection and intervention. Early detection of disability and intervention through drug or non-drug therapies
helps in minimization of impact of disability. Therefore, there will be emphasis on early detection and early intervention, and necessary facilities will be created towards this end. Government will take measures to disseminate information regarding availability of such facilities to the people, especially in rural areas. The number B, A, B, C, A and B. After that, B. Counseling and medical rehabilitation. Physical rehabilitation measures, including counseling, strengthening capacities of persons with disabilities and their families, physiotherapy, occupational therapy, psychotherapy, surgical correction and intervention, vision assessment, vision stimulation, speech therapy, rehabilitation and special education shall be extended to the cover all the district in the country by active involvement and participation of state government, local level institution, NGO, including associations of parents and person with disabilities. To expand coverage in rural and unserved areas, new district disability rehabilitation center DDRCs will be set up with support from state government. The National Rural Health Mission, through accredited social health activist ASHA, addresses the health needs of rural population, especially the vulnerable section of society. The ASA will take care of comprehensive services to the person with disability at the grassroots level. Number C, assisted devices. The government of India has been assisted person with disabilities in procuring durable and scientifically manufactured modern aids and appliances of ISI standard that can promote their physical, social and psychological independence by reducing the effect of disabilities. Every year, through national institutes, state governments, DDRCs and NGOs, persons with disabilities are provided with devices such as prosthesis and orthotics, tricycles, wheelchair, surgical footwear and devices for activities of daily living, learning equipments, braille writing equipments, CD player, tape recorder, low vision aids, special mobility aids like canes for blind, hearing aids, educational kits, communication aids, assistive and alerting devices and devices suitable for the person with mental disabilities. The availability of devices will be expanded to cover uncovered and unserviced areas also. Now D, development of rehabilitation profession. Human resource requirements for rehabilitation of person with disabilities will be assessed and development plan will be prepared so that the rehabilitation strategy do not suffer from lack of manpower. Now in Hindi, विकलांग व्यक्तियों और इसके मूलभूत पहलुओं के लिए राष्ट्रीय नीति. नंबर 1, विकलांगों की रोकथाम. चूंकि विकलांग के मामलों को बड़ी संख्या में रोके जाने की योग है, इसलिए विकलांगता के रोकथाम पर जोर दिया जाएगा. बीमारियों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम जिसके परिणाम स्वरूप विकलांगता और जागरूकता का निर्माण होता है, गर्भधारण की अवधि के दौरान और उसके बाद विकलांगता के रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों अद्वितीय विस्तार हुआ. पुनर्वास के उपाय. नंबर 2, पुनर्वास उपायों को 10 पॉइंट में पहला मैंने बता दिया, अब ये सेकंड पॉइंट है. पुनर्वास उपायों को 3 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है. नंबर 1, फिजिकल पुनर्वास यानी भौतिक पुनर्वास. एड्स और उपकरणों के हस्तक्षेप और प्रावधान जिसमें शुरुआती जांच और हस्तक्षेप, परामर्श और चिकित्सा शामिल है. इसमें पुनर्वास पेशेवरों का विकास भी शामिल होगा. नंबर 2, व्यवसायिक शिक्षा सहित शैक्षिक पुनर्वास. नंबर 3, समाज में एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए आर्थिक पुनर्वास. तब मैं नंबर 1 पर आता हूँ. भौतिक
शारीरिक पुनर्वास रणनीतियाँ, इसको भी जो है वह 4 भाग में अलग अलग डिवाइड किया गया है। प्रारंभिक जांच और हस्तक्षेप। नाउ प्रारंभिक जांच और हस्तक्षेप। विकलांगता का प्रभाव दवा या गैर दवा उपचारों के माध्यम से विकलांगता और हस्तक्षेप का शीघ्र पता लगाने से कम करने में मदद मिलती है, इसलिए जल्दी पता लगाने और शुरुआती हस्तक्षेप पर जोर दिया जाएगा और इसके लिए आवश्यक सुविधाएं बनाई जाएंगी। सरकार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रसार के लिए उपाय करेगी। परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास। परामर्श सहित शारीरिक पुनर्वास के उपाय, व्यक्तियों की क्षमता को मजबूत करना, विकलांग और उनके परिवार, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा, मनोचिकित्सा, सर्जिकल सुधार और हस्तक्षेप, दृष्टि मूल्यांकन, दृष्टि उत्तेजना, भाषण चिकित्सा, पुनर्वास और विशेष सक्रिय भागीदारी का विस्तार किया जाएगा। देश के राज्य सरकारों, स्थानीय स्तर के संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों सहित माता पिता और व्यक्तियों के साथ विकलांग के भागीदारी द्वारा सभी जिलों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए विस्तार किया जाएगा। ग्रामीण और अनारक्षित क्षेत्रों में कवरेज का विस्तार करने के लिए नए जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र DDRC राज्य सरकार के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के माध्यम से जमीनी स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का उपाय करेगी। सहायक उपकरण। नंबर C, भारत सरकार टिकाऊ और ISI मानक के वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक सहायक उपकरण के खरीद में और उपकरण जो उनके लिए भौतिक को बढ़ावा दे सकते हैं, विकलांगों के प्रभाव को कम करके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता में विकलांग व्यक्तियों की सहायता कर रही है। हर साल राष्ट्रीय संस्थानों, राज्य सरकारों, DDRC एंड गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से विकलांग व्यक्ति कृत्रिम अंग और आर्थोस, तिपहिया, व्हीलचेयर, सर्जिकल फुटवेयर और जैसे उपकरणों के साथ प्रदान की जाती है। दैनिक जीवन की गतिविधियों के लिए उपकरण, शिक्षण उपकरण, ब्रेल लेखन उपकरण, CD प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, कम दृष्टि एड्स यानी जो कम दृष्टि विजन वाले के जो कहिए कि इक्विपमेंट्स यानी जो है वह सीखने के लिए, इसलिए वो एड्स की बात है यहाँ। अंधे के लिए विशेष गतिशीलता एड्स यानी टीचिंग एड्स, श्रवण यंत्र, शैक्षिक किट, संचार सहायक और चेतावनी उपकरणों मानसिक के साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। और नंबर D, पुनर्वास पेशेवर का विकास। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए मानव संसाधन आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाएगा और विकास योजना तैयार की जाएगी ताकि पुनर्वास रणनीतियों में जनशक्ति की कमी न हो। इस प्रकार से मैंने पहले और दूसरे पार्ट है उसको मैंने क्लियर किया, लेकिन ध्यान रखें कि दूसरा जो रिहेबिलिटेशन की जो बात है मेजर्स की, उसमें 2 पॉइंट और रह गए हैं जिसको कि मैं अगले क्लास में करूँगा। उसके साथ ही मेन जो पॉइंट है 10 पॉइंट के, उसके बाकी 8 पॉइंट को भी क्लियर करूँगा। On the basis of above discussion, it indicates that prevention of disabilities and rehabilitation measures 100% fruitful scheme of the government of India, especially for the disabled person. यह ऊपर जो वर्णित मैंने अभी जो 2 पॉइंट की चर्चा की, उससे ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि भारत सरकार की चलाई हुई ये जो योजनाएं वह 100% यानी 100% फ्रूटफुल है, फलदायी हैं। अगर इसका सही तरीके से पालन हो, इसका उपयोग हो, इसमें NGO भी बहुत हद तक मदद कर रही है, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में चर्चा की। शुरू के 2 पॉइंट की चर्चा मैं किया हूँ और उस 2 पॉइंट में जो दूसरा रिहेबिलिटेशन की बात है, पुनर्वास की प्लानिंग है, उसके 3 भाग हैं, जिसमें कि मैं फिजिकल मेजर्स की बात किया हूँ शारीरिक रूप से, उसके बाद व्यवसायिक और जो इकोनॉमिक है उसको अगले क्लास में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो बचे हुए जो और 8 पॉइंट है उसके बारे में भी विस्तार से बात करूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इसे YouTube चैनल में इस वीडियो को देख सकते हैं, उससे संबंधित कमेंट्स बॉक्स में जाकर मेंशन करें और जो भी प्रश्न होंगे उसका जो है वह आपको आंसर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।